Upadhyay from Deendayal Upadhyay Center. I am the student of GDA. I am here to focus on this subject, drugs and alcohol abuse. As we all know, the rising of the alcohol and abuse is really considering a major problem. What are drugs? Drugs are the medicines normally used to help patients to cope up with mental illness like depression and insomnia are often abused. Morphine is a very sedative and effective painkiller which is given to the patients who have undergone surgery. Now we focus what are drugs. When people take in these medicines often and in more amount that affects one's physical, physiological and psychological behavior, it is considered as drugs. The commonly used drugs are alkaloids, cocainoids and organoids. Cocaine is, if it taken in large amount, causes hallucinations, and heroin is a drug which represents and slows down body function. Now focus on the surveys and statistics shows that rise of alcohol and drugs among youth is very common. Adolescence is the phase where a child becomes mature. The age between 12 to 18 is considered as a bridge linking to the childhood to adulthood. The progression between youth is to being cool when someone smokes and drinks alcohol, and this is really very major problem as considered. The other factors is that family unsupportness and peer pressure. Smoking kills people, as some people know, but they are not considered is a major problem. Smoking contains nicotine and alkaloids. It's a chemical substances harmful to us, and it also affects lungs, cancers and gastric ulcers, brain hemorrhage. Tobacco has been used by human beings more than 400 years, and it causes oral cavity cancer. Excessive amounts of drugs causes coma and death due to the respiratory failure, heart failure and cerebral hemorrhage. Now, how we can get rid of these drugs? What are the solutions of the drugs? Let us consider as supportive parents and trustful people. Whenever a friend found out someone is having drugs, they should not hesitate to bring this topic to the parents and teachers are responsible for this, and they consider immediate help to those people. As we know, very medical facilities are available to us like psychiatrists, physiologists. We can take their help and we can maintain our life healthy. Thank you everyone. नशा मुक्ति मादक पदार्थों का रोकथाम स्लोगन। पहला, नशे की लत ऐसी जो कर दे जिंदगी नर्क जैसी। दूसरा, हम सबका एक ही नारा है, नशा मुक्त हो देश हमारा। तीसरा, जिसने नशे को हाथ लगाया मौत ने उसको गले लगाया। चौथा, जन जन ने ठाना है देश को मिटाना है, नशे को मिटाना है। धन्यवाद। नशा करने से शरीर का हानिकारक होता है, जैसे शराब, गुटखा, तंबाकू बीमारियां होती है। उसमें कैंसर, टीबी जैसी बीमारियां होती है। नशा हमारे समाज के लिए एक बहुत गंभीर समस्या बन चुका है। इसके कारण बहुत युवक का जीवन बर्बाद हो रहा है। इसके कारण मेरे सभी को नमस्कार। मैं बासी देवी नशा मुक्ति के लिए से बोल रही हूँ। नशा हमारे परिवार के लिए बहुत खतरा है। नशा करने से हमारे शारीरिक संबंधित से तबीयत भी खराब हो जाते हैं और बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं। बीमारी होने के कारण बहुत सारे लोगों की मौत हो रही है और बहुत परिवार बिछड़ रहे हैं नशा के कारण, और गली मोहल्ले में पर्यावरण खराब हो रहा है।
का ऐसा चला रिवाज, खाते अंधाधुन सभी हुआ दूषित समाज। फंसा नशे के जाल में बच्चे और बूढ़े, झुकी जैसा तन बना जो था पहले दूर। मन से कुंठित हो गया लगा नशे का रोग, है दृष्टि से देखते इनको सारे लोग। नशा करे जो शान से उनका होता नाश, ऐसे लोगों को सभी कहते हैं अयास। मधु के मद में डूबकर हुआ नशे में चूर, छूट गए सब रिश्ते नाते हुआ सभी से दूर। मान प्रतिष्ठा बन गया जर्दा गुटखा पान, नौ वर्ग गुमनाम है इनको तनिक ना भान। जो मन करता नशा, जो जन करता है नशा, हो जाता बर्बाद। निज कर्म को छोड़कर कैसे हो आबाद। नशेबाज कहते सभी इनको तनिक न लाज, बच्चे भी रो रहे रोटी को है मोहताज। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आदरणीय उपस्थित शिक्षकगण, शिक्षिकाएं एवं मेरी प्यारी बहनों, मैं पूजा कुमारी दीनदयाल उपाध्याय कौशल केंद्र जीडीए की छात्रा हूँ। मैं आप सबों के बीच नशा मुक्ति पर कुछ विचारों को रखने जा रही हूँ। हमारे देश में नशे के समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है एवं युवा पीढ़ी नशे के शिकार होते जा रहे हैं। नशे की लत ने हमारे देश के नौजवानों को इस तरह से जकड़ लिया है जैसा कि एक शिकारी अपने शिकार को जकड़ लेता है। इतना ही नहीं बल्कि अपने बच्चे के समस्याओं को ना समझना एवं उनपे अपनी आकांक्षाओं को बोझ सौंप देना और उनकी गलतियों को ना समझना, धीरे धीरे बच्चे अवनति के गड्ढे की ओर धकेलते चले जाते हैं। हमारा समाज भी उसके लिए कुछ कम जिम्मेदार नहीं है। शराब सिगरेट के वरदान जी का सबूत समझा जाता है। शराब सिगरेट वरदान जी का सबूत समझा जाता है। जो नशा करता है इंसान उसका कभी ना हो सकता है कल्याण। नशे के लत जो जारी है यह सबसे बड़ी बीमारी है। क्या इसका कोई उपाय नहीं है? क्या हम युवा पीढ़ी को नशे के चंगुल से बाहर नहीं निकाल सकते हैं? क्या इस समस्या का कोई समाधान नहीं है? सबसे पहले अपने परिवार से शुरुआत करते हैं। माता पिता अपने बच्चे को सबसे पहले आदर्श शिक्षक एवं मार्गदर्शक होते हैं एवं उनके साथ बचपन से ही समय बिताते हैं, उनके समस्याओं को समझते हैं एवं उन्हें सही और गलत का अंतर बताते हैं और उन्हें यह यकीन दिलाते हैं कि उसके हर दुख में, उसके जीवन में आए हर परिस्थितियों में उनके साथ है एवं ताकि उन्हें कभी ये महसूस ना हो कि उसके जीवन में कभी भी परेशानी होगा तो वह नशे का सहारा ले। नशा मुक्ति का अभियान दशा देश की क्यों डगमगाने लगी, दशा देश की क्यों डगमगाने लगी। जवानी नशे में क्यों लड़खड़ाने लगी, जवानी नशे में क्यों लड़खड़ाने लगी। महोदय श्री शक्ति से आदरणीय शिक्षक ने नवीन भारत के युवा दोस्तों, आप सभी को मेरा स्नेहपूर्ण नमन। आज इस सभा में उपस्थित मैं सभी को नशा मुक्ति पर आकर्षित करते हुए कहना चाहूँगी कि रो रही है भारत माता, कि रो रही है भारत माता, छा रहा है मातम, रो रहा है वक्त। अरे देखिए जनाब, मेरे देश में क्या क्या हो रहा है, मेरे देश में क्या क्या हो रहा है। महोदय, हमारी सरकार नशा मुक्ति के नियमों को लागू करने के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रही है ताकि हम नौजवानों का जीवन उज्जवल भविष्य बन सके और एक सशक्त देश का निर्माण हो सके। महोदय, हमारी सरकार समय समय पर शिक्षा व खेलों के स्तरों पर विभिन्न प्रतिनिधित्व करवाती है ताकि हम नौजवान नशे की चपेट में ना आ सके। आखिर लोग नशा करते ही क्यों है? एक प्रश्न यह भी उठता है कि लोग नशा करते ही क्यों है? तो हमें यह उत्तर मिलता है कि कुछ समय के लिए जीवन की कठिनाइयों को भूलने के लिए नशा करते हैं। तो मैं उनसे एक प्रश्न करना चाहूँगी कि वे जीवन की कठिनाइयों को भूलना क्यों चाहते हैं? हमारे संतजनों गुरुजनों ने कहा है खुद को पहचानो, तो वो खुद को भूलने की वरकता करते ही क्यों है? मैं उनसे कहना चाहूँगी कि आप अपने आप को पहचानिए और अपना जीवन नशे में व्यर्थ मत करिए। धन्यवाद। मेरा नाम मधु कुमारी है, मैं फ्रांसिस इंडिया DDEO की छात्रा हूँ। आप लोगों के बीच में कुछ लाइनें प्रस्तुत करना चाहती हूँ।
Alcohol is the constitute drinking of alcohol, despite it causing problems. आजकल हमारे समाज में छोटे छोटे बच्चे जो नशा करते हैं उन्हें नशा नहीं करना चाहिए। हमारी सरकार अनेक प्रकार की विद्यालय बना रहे हैं, गवर्नमेंट एंड प्राइवेट, जिससे बच्चे जिससे पढ़ाई करके उस समझ पाए बच्चे की क्या अच्छा है हमारे समाज के लिए, क्या बुरा है। उनकी सारी बुराइयों को खत्म करने के लिए सरकार इतनी सारी स्कूलें बनाई जा रही है सरकार के द्वारा, लेकिन हमारे बच्चे जो देश के बच्चे हैं वो समूह बनाकर नशा करते हैं और हमारे समाज को बिगाड़ते हैं। जो व्यक्ति नशा करते हैं वो अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को, समाज को और वातावरण को भी दूषित करते हैं, जिसकी वजह से हमारे वातावरण की सारी हवाएं और हमारे समाज में जो वातावरण में जो हवाएं आती है वो दूषित हो रही है, जिससे अनेक प्रकार की प्रॉब्लम और बीमारियां हो रही है। इससे दूर करने के लिए सरकार को एक्टिव किया जाए और अनेक प्रकार की सरकार द्वारा लागू किया जाए कुछ नीतियाँ जो शराब पीते हैं, सिगरेट का सेवन करते हैं, उसके लिए रोकथाम के लिए किया जाए। धन्यवाद। सुप्रभात सर, मैम। मैं गीता कुमारी विद्यालय उपाध्याय कौशल केंद्र की छात्रा हूँ और मेरा विषय नशा मुक्ति पर कविता है। रोकनी होगी नशे की आदत, नशा है बहुत बुरी लत। रोकनी होगी नशे की आदत, नशा है बहुत बुरी लत। हम सबका ही है सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। हम सबका ही है सपना, नशा मुक्त हो भारत अपना। हम सबने यह ठाना है, नशा को जड़ से हटाना है। हम सबने यह ठाना है, नशा को जड़ से हटाना है। देश को आगे बढ़ाना है तो नशा को खत्म कराना है। देश को आगे बढ़ाना है, नशा को खत्म कराना है। थैंक यू। सभी को नमस्कार। आज मेरा टॉपिक है नशा मुक्ति। नशा एक ऐसा प्रकार का बीमारी है जो शरीर में, बॉडी में पूरा प्रकार से इफेक्ट कर देता है और पारिवारिक जीवन में भी दुखी आ जाता है। किसी भी देश के लिए नशा करने से डेवलप नहीं होता है और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से तथा सामाजिक रूप से परिवार में उलझन आ जाती है। नशा करने से परिवार के जीवन में दुखी आ जाती है। नशा ऐसा वर्ड है जो पूरे बॉडी को इफेक्ट कर देता है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा आज का टॉपिक है नशा मुक्ति। इसमें देश के भविष्य देश के युवाओं पर डिपेंड होती है। अगर देश के युवा ही गलत रास्ते पे चले जाए तो निश्चित तौर पर उनका जीवन अंधकार में चला जाता है। Thank you so much giving to me this opportunity to introduce myself. I am Muskan Khatun. I am from Baru Bahadurpur and I am student DDO of परम सम्मानीय प्रधाना महोदय जी, वही अध्यापन, यहाँ पर उपस्थित सभी भाइयों एंड बहनों, मैं मुस्कान खातून आप लोगों को जिस चीज से विस्तृत से सूचित करना चाहती हूँ वो है समाज में बढ़ता अपराध व नशाखोरी। तो कृपया ध्यान से सुने। हमारे देश में नशे की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। नशे की लत ने हमारे देश के नौजवानों को इस तरह से जकड़ लिया है जैसे एक शिकारी अपने शिकार को जकड़ता है। स्कूली छात्राओं के माध्यम के अनुसार यह पाया गया है कि भारत में 10वीं क्लास तक 50% छात्र ऐसे हैं जिन्होंने एक बार किसी न किसी तरह के नशे का सेवन किया है, जो आने वाले समय पर हमारे देश पर घोर संकेत के रूप में दिखाई देने वाला है। नशे की आदि शक्ति जब तक जीता है अपने परिवार व समाज और देश पर एक बोझ बनकर जीता है। नशे की आदि व्यक्ति नशे की प्राप्ति के लिए चोरी चकारी जैसे कार्य करता है और कभी कभार जरूरत पड़ने पर वह किसी बड़े अपराध को भी अंजाम दे सकता है, जिसका परिणाम उसे खुद स्वयं और उसकी परिवार को भुगतना पड़ता है। नशा एक ऐसी समस्या है
नशा एक ऐसी समस्या है जिसमें नशा करने वाले के साथ साथ उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। यदि परिवार बर्बाद हो तो ये समाज नहीं रहेगा। समाज नहीं रहेगा तो ये देश बिखरता चला जाएगा। एक अनुमान के अनुसार भारत में लगभग 70 लाख लोग नशे की चपेट में हैं, जिसके जीते जागते उदाहरण हमें आए दिन अखबारों में पढ़ने को मिलता है। नहीं मांगते रोजी रोटी, नहीं मांगते तुमसे प्यार, नहीं मांगते रोजी रोटी, नहीं मांगते तुमसे प्यार, रोक लगा दो नशे पर खुद सुखी रहेगा संसार। घर घर में सबको जगाना है, हमें देश एक नया बनाना है, हो जाए तंदुरुस्त देश हमारा, हमें भारत से नशे को दूर भगाना है। जन जन का यही है संदेश, जन जन का यही है संदेश, नशा मुक्त हो हमारा देश। नशा जो करता है इंसान उसका कभी ना हो कल्याण, नशा जो करता है इंसान उसका कभी ना हो कल्याण। नशे की लत जो जारी है ये सबसे बड़ी बीमारी है। मेले लगते हैं शमशानों में, मेले लगते हैं शमशानों में, आज उसकी तो